for the first time. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार। प्रियंका गांधी जी अब वायनाड का प्रतिनिधित्व करने के लिए सोनिया जी के हाथ में राजीव जी की तस्वीर थी। प्रियंका जी ने उसके नीचे सिर्फ When I was 17 years old, I campaigned for the first time for my father in the 1989 general election. ഞാൻ 17 വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ പിതാവിന് വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടത്തിയത്, അന്നത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ. It is now 35 years. I have campaigned for my mother, I have campaigned for my brother, for many of my colleagues, that it has been 35 years since I have been campaigning for different elections. This is the first time that I am campaigning for your support for myself. കഴിഞ്ഞ 35 വർഷങ്ങളായി പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഞാൻ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പിന്തുണയ്ക്ക് വേണ്ടി, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് എത്തുന്നത്. And it is a very different feeling. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന് എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അനുഭവവും വികാരവുമാണുള്ളത്. I am deeply grateful to Congress President Mallikarjun Kharge ji for giving me this privilege of being the UDF candidate from Wayanad, and to my family for supporting me and allowing me to be the candidate for Wayanad. ഈ അവസരത്തിന് വയനാട്ടിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയായി മത്സരിക്കാൻ എനിക്ക് നൽകിയ അവസരത്തിന് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ജിയോട് ഞാൻ എന്റെ നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ അവസരം നൽകിയ എന്റെ കുടുംബത്തോടും ഞാൻ എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. It is my honor to represent you. If you give me a chance, നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു അവസരം നൽകിയാൽ നിങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ആദരവായി ഞാൻ കണക്കാക്കും. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ നോക്കുന്നതിൽ, നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്നതിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിൽ എന്റെ അനിയത്തി പൂർണ്ണമായി ഊർജം ചെലവഴിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. And don't forget, I am your unofficial member of parliament, so I am also allowed to come here and interfere and do the work in Wayanad. അത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പാർലമെന്റിലെ അനൗദ്യോഗിക പ്രതിനിധിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാനും ഇവിടെ വരാനും നിങ്ങൾ എന്നെയും അനുവദിക്കണം. ഞാനും വരും എന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. कितनी महंगाई, कितनी बेईमानी, कितना भ्रष्टाचार। और यहाँ तक कि याद करो, नौकरी कितने लोगों को रोज सुनते होंगे, रोज टीवी पर अगर देखोगे तो कौन सी नौकरी? समझदार आउटसोर्सिंग, केवल आउटसोर्सिंग। तब आउटसोर्सिंग में कितना पैसा? 11,500 तो लिखा पड़ी। और जिसको अगर नौकरी मिल रही है उसे पूछो तो कहीं 8,000, कहीं 8,500। बताओ, लड़के पढ़े लिखे लड़के, कितना पढ़े लिखे लड़के, बताओ 8, 8,500 में क्या उनका परिवार चल जाएगा? आउटसोर्सिंग में चल जाएगा? अभी कोई कह रहा था कि वो मिलिट्री में वो 4 साल की नौकरी, 4 साल की नौकरी। और रामराज की बात करते हैं, और रामराज की बात करने वाले लोग ही इतने बेईमान अगर हो जाए तो बताओ फिर ऐसे क्या कहेंगे? फिर तो सीधा सीधा आज भारतीय जनता पार्टी की जब से आई है, लगता है तभी से तो कलयुग आ गया है। हिंदुस्तान की सियासत में एक नया आगाज हो रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जी वायनाड से अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं। वायनाड से जो रिश्ता राहुल गांधी जी ने जोड़ा है, उसे एक नई ऊंचाई देने के लिए प्रियंका गांधी जी अब वायनाड का प्रतिनिधित्व करने के लिए वायनाड
के लोगों से अपना रिश्ता जोड़ने के लिए, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए, और उस आधी आबादी की लड़ाई जो वो सड़क पर लड़ती रही है, देश की महिलाओं की लड़ाई, उस लड़ाई को देश की संसद तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वायनाड से लोकसभा चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, उससे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता बहुत खुश है। हम देखना चाहते हैं देश की संसद में प्रियंका गांधी जी को बोलते हुए, हम सुनना चाहते हैं प्रियंका गांधी जी को उसी तरह से जिस तरह से हमने देश की सड़कों पर सुना है उन्हें आधी आबादी की लड़ाई लड़ते हुए। तो ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। कांग्रेस का कार्यकर्ता और देश का हर बौद्धिक तबका, हर मतदाता खुश है कि प्रियंका गांधी जी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आई हैं। अब तक संगठन के तौर पे उन्होंने बहुत शानदार काम किया है और अब चुनावी राजनीति में आकर के वो संसद की दीवारों के सामने खड़ी होकर के जब आधी आबादी की आवाज बुलंद करेंगी तो हमें पूरा यकीन है कि उस लड़ाई को एक नए अंजाम पर पहुंचाया जा सकेगा। तो प्रियंका गांधी जी को नामांकन दाखिल करने पर बहुत मुबारकबाद देते हैं और आने वाले दिनों में जब रिजल्ट आएगा, इस चुनाव के नतीजे आएंगे, तो हमें पूरा यकीन है कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करके प्रियंका गांधी जी देश की पार्लियामेंट में पहुंचेंगी। हम सब मुंतजिर हैं प्रियंका गांधी जी के। आइए, देश की संसद की दीवारें आपका इंतजार कर रही हैं, देश आपका इंतजार कर रहा है। प्रियंका जी, आपको बहुत मुबारकबाद। प्रियंका गांधी मेरे लिए वो शख्स जिनसे मुझे बहुत प्यार है, मतलब बहुत सारा वाला। जितना मैंने उनको देखा है, जितना उनको समझा है, जितना उनको जाना है, उनके अंदर एक गजब की कुव्वत है किसी को अपना बना लेने की। वो जितनी साहसी हैं उतनी ही संवेदनशील भी हैं, बहुत परिश्रमी हैं और उससे ज्यादा बेफिक्र और जिंदा दिल हैं। असलियत यह है कि उनके साथ काम करना कभी बोझिल लगता ही नहीं है, क्योंकि सारा काम इतनी हंसी खुशी में हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। वो अपने परिवार के लिए शेरनी की तरह डट जाती हैं और लोगों की आवाज बुलंद तरीके से दुनिया के सामने उठाती हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर उन्होंने राजनीति में एक बहुत लंबी लकीर खींची, एक बहुत बड़ी पहल की। मैंने उनकी निर्भीकता को देखा है, हाथरस में देखा है, सोनभद्र में देखा है, लखीमपुर में देखा है, तमाम जगह देखा है जब वो पुलिस और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ अड़ जाती हैं, डट के खड़ी हो जाती हैं और पीछे नहीं हटती हैं। वो जिद्दी भी बहुत है, जो ठान लेती हैं फिर वो करके ही मानती है। तमाम व्रत करती हैं, हर त्योहार को बड़े रौनक से मनाती हैं।